Everyone, today we are going to discuss all the possible MCQ questions from our chapter 1 of Geography, Resource and Development. We will learn these MCQ questions topic wise in some parts. So, topic covered today are what is a resource, independent relation between human and resource and all the types of resources. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रिसोर्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का कि रिसोर्स क्या होता है। ऑप्शंस हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर, मैन मेड प्रोडक्ट्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट, technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, and option D is anything from which a product can be manufactured. So as we know, a resource is something available in our environment which can satisfy our need and is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. So, the correct answer is option C, extract from environment, technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. After that, our question 2 is the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between जो हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, थिंग्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किन किन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। तो वो है ऑप्शंस पहले हमारे हैं नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, एनवायरनमेंट एंड नेचर, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। द करेक्ट ऑप्शन इज option B, nature, technology and institution. After that, our question number 3 is how do human being interact with nature, कि जो human beings हैं वो कैसे interact करते हैं nature से। So the options are through technology, through nurturing environmental resources, through industry, through experimental advances। तो हमारा आंसर क्या होगा? Through technology. Option A is correct. After that, our question number 4 is how are resources qualified? हमें ऑप्शन दिए गए हैं on the basis of origin, on the basis of utility, on the basis of distribution and on the basis of potential. तो हमें पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, यूटिलिटी भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो बचता है ऑप्शन ए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो आर क्वेश्चन नंबर 5 इज वेयर आर बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम। ये किस चीज़ के टाइप होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज? ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के टू टाइप्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मतलब कि कहाँ पर होते हैं, ऑब्टेन कहाँ से करते हैं हम बायोटिक रिसोर्सेज को। तो ऑप्शन ए है from biosphere and have life such as human being, flora, fauna and fisheries and livestock. Option B is composed of non-living things and option C is reproduced by physical, chemical or mechanical processes and option D is minerals and fossil fuels. So we know that the biotic resources are obtained from option A from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries, livestock. All these are biotic resources, human being, flora, fauna. So our question number 6 is where are abiotic resources obtained from। अब हमने बायोटिक की बात की थी पहले, अब हम बात करेंगे एबायोटिक की कि एबायोटिक रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, reproduced by physical, chemical or mechanical processes and composed of non-living things from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries and livestock। ये आंसर हमारा बायोटिक में आया था कि बायोटिक कहाँ से मिलते हैं, तो ये डी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। उसके बाद में तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि ये एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। तो हमें पता है कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑप्शंस आर दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, ये तो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद में कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ये भी हमें पता है कि ये एबायोटिक होते हैं।
तो ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर रहेगा। तो देखते हैं कौन सा है। विच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, या फिर फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। अब जो बायोस्फीयर में होती हैं लाइफ होती है, ये फिर से बायोटिक ही होते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन, कि विच कैन बी रिन्यूड। रिन्यूएबल कौन से होंगे? जो रिन्यू कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस से। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, इनमें से हमें बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल, सेकंड ऑप्शन इज सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड ऑप्शन सी इज रॉक्स एंड मेटल, ऑप्शन डी इज फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज solar and wind energy, water, forest and wildlife. These are the example of non-renewable resources. After that, our question number 9 is give example of non-renewable resources. Non-renewable resources के example कौन से हैं? Flora and fauna, fisheries, livestock, solar and wind energy, water, forest and wildlife, mineral and fossil fuel, and D option is rock and metals. So as we know that option B is option B is example of renewable resources, so option B is not there. And flora, fauna, fisheries are biotic resources, so these are also non-renewable resources. And as we know that fossil fuels like petroleum and minerals are non-renewable, we cannot renew them, so the correct option is option C, mineral and fossil fuels. After that, our question number 10 is which of these are resources based on ownership? ओनरशिप के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा रिसोर्सेज ओनरशिप के बेस पे है। सो आर ऑप्शन इज इंडिविजुअल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा इंडिविजुअल रिसोर्स, क्योंकि जो एबायोटिक रिसोर्स है ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी भी दो टाइप होते हैं, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। और उसके बाद में ओनरशिप के भी टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद में कम्युनिटी, और नेशनल एंड इंटरनेशनल। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, उसके भी चार पार्ट्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व्स। सो उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब हमें एग्जांपल देना है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स। ऑप्शन बी इज प्लॉट हाउसेज, plots and houses. After that, option C is energy, water, forest, and option D is flora and fauna, fisheries. So the correct option is option A. As we know that public park, playground and grazing ground, burial ground, these are community owned resources. After that, question number 12 is give example of national resources. नेशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल देने हैं हमें 12th क्वेश्चन में। तो उसके क्या ऑप्शन है हमारे पास? प्लॉट्स एंड हाउसेस, पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, ओशियनिक, एंड ऑप्शन डी इज ओशियनिक रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन डी इज मिनरल वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड। तो हमें किस चीज़ का बताना है? नेशनल का बताना है। तो नेशनल में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, that mineral, water resources, forest, wildlife, all these come under the national resources. इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑप्शन ए, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। ऑप्शन बी, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। अब उसके बाद में ऑप्शन सी है, resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. And option D is those things which are composed of non-living thing. So our correct option is the option B, resources which are found in region but have not been utilized. So
The option B is correct. Option B, resources which are found in region, जो कि हमारे रीजन में मिलते हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उन्हें कहेंगे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्सेज. जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Option B is resources which can be renewed or reproduced. Option C is those things which are composed of non-living things. And option D is resources which are found in region but have not been utilized. So our correct option is option A. Option A, that resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization come under the resources which are developed. After that, our question number 15 is what is a stock? कि स्टॉक क्या होता है? तो ऑप्शंस है हमारे पास resources which can be renewed or reproduced, resources which are found in a region but have not been utilized, material in the environment which have the potential to satisfy needs but humans do not have the appropriate technology to access these, and option D is solar and wind energy, water and forest life. So the correct option is option C, as वी नो डैट सोलर विंड एनर्जी क्या है, नॉन जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके एग्जांपल है. रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट यूटिलाइज्ड, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो इसीलिए नहीं है. इसके बाद में क्या है कि रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, ये रीन्यूएबल में आ जाएंगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि स्टॉक होता है द मटेरियल इन एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट human being do not have appropriate technology to access these. After that, our question number 16 is, which is our last question for today, that human beings used resources indiscriminately and this has led to the following major problems. What are these problems? Not well planned use of these resources, wastage of resources, and not many problem की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है. उसके बाद में एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू. अब इसके बाद में क्या है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किए जा रहे हैं, बिना सोचे विचारे यूज़ किए जा रहे हैं. तो इसकी क्या मेजर प्रॉब्लम है? इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू. So that's all for today. We will continue these lectures on MCQ questions. So thank you and have a nice day.